تہران نے تقریباً ہماری تمام باتوں پر اتفاق کر لیا، امریکی صدر کا دعویٰ، کہا ایران میں 300% مہنگائی ہے، ہم کچھ مالی وسائل ایران کو فراہم کریں گے، منجمد اثاثوں سے مکئی، گندم اور دیگر امریکی زرعی اجناس خریدی جائیں گی، ایران کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ روایتی معنوں میں جنگ نہیں تھی، مقصد ایران کو جوہری صلاحیت سے محروم کرنا تھا، ٹرمپ کی ایک بار پھر دھمکی، کہا چاہیں تو ایران کے باقی ماندہ میزائل بھی تباہ کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ علی خامنائی کا سفر آخرت، ایران کے شہید سپریم لیڈر کا جسد خاکی سامنے آ گیا، امام خمینی حسینیہ سینٹر میں رکھ دیا گیا، تعزیتی تقاریب کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل، تہران کے مسلح الکبیر میں انتظامات، سیکیورٹی انتہائی سخت، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آج روانہ ہوں گے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اسپیکر سردار ایاز صادق اور وفاقی وزراء بھی ساتھ ہوں گے، چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی تہران پہنچ گئے، 200 سے زائد غیر ملکی شخصیات کی آمد متوقع، دنیا بھر کے 600 سے زائد صحافیوں کو دعوت نامے جاری، سپریم لیڈر مجتبی خامنائی سیکیورٹی وجوہات کے باعث تقریب میں شریک نہیں ہوں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کی شہید اہلیہ کی نماز جنازہ تہران میں ادا، سپرد خاک کر دیا گیا، ایرانی میڈیا کے مطابق زہرا حداد عادل 28 فروری کو اپنے سسر آیت اللہ علی خامنائی کے ساتھ شہید ہو گئی تھیں، رہبر اعلیٰ کی شہادت سفر کا اختتام نہیں، نئے باب کا آغاز ہے، آیت اللہ علی خامنائی کی تعزیتی تقاریب سے پہلے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا پیغام۔ امریکہ کا ایران پر آبنائے ہرمز میں ٹول وصولی نہ کرنے پر زور، امریکی حکام کے مطابق عالمی گزرگاہ پر ٹول کا مطالبہ معاہدہ سبوتاژ کر سکتا ہے، امریکی نمائندہ خصوصی وٹکوف اور جیرڈ کوشنر کا ایران کو بڑا سوچنے کا مشورہ، واضح کیا کہ پابندیاں ختم ہوئیں تو ایران کو 100 گنا زیادہ معاشی فائدہ ہوگا۔ اسرائیل نے امریکہ سے مذاکرات کے دوران ایرانی مذاکرات کاروں کے قتل کا منصوبہ بنایا، نیو یارک ٹائمز کا انکشاف، لکھا واشنگٹن کو خدشہ تھا اسرائیل عراقچی اور قالباف کو نشانہ بنا سکتا ہے، ممکنہ حملے کے باعث مذاکرات ناکام اور جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی تھی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت، سفارتی کوششوں کی کامیابی، پاکستان نے ذمہ داری کے احساس کے تحت ثالثی کا آغاز کیا، عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب، کہا ایران اور امریکہ معاہدے کے فالو اپ پر مثبت پیش رفت جاری ہے، طاقت کے استعمال کی کوئی گنجائش نہیں، خطے میں کشیدگی کم کرنا اولین ترجیح ہے۔ یا راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے، جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے، جس تن لاگے سو تن جانے۔ And that led to this, to introduce technology driven system. Every policy that I'm making today carries a lesson learned behind the prison walls. I introduced emergency call buttons. جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے، 24 گھنٹے قیدی تنہائی میں رہتی تھی، اہلکار کھانا دروازے پہ رکھنے کے بعد دستک دے کر چلے جاتے، خود پر جو گزری اسی کو دیکھ کر جیل ریفارمز کی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جیل اصلاحات کانفرنس سے خطاب، کہا دوران قید ایک روز شوگر کم ہو گئی، مدد کے لیے چلاتی رہی لیکن کوئی نہ آیا، ہاتھ کانپ رہے تھے، گڑ والی بوتل بھی گر کر ٹوٹ گئی، مجبوراً کانچ ملا گڑ کھانا پڑا، اسی صورتحال کے سبب جیل میں ایمرجنسی پینک بٹن متعارف کروایا۔ خطاب سے پہلے مریم نواز نے جیل ریفارم سے متعلق ڈاکیومنٹری بھی دکھائی۔ اصلاحات کا آغاز ڈیالہ جیل سے ہونا چاہیے، بانی پی ٹی آئی کی صحت خراب ہے، ذاتی معالجین سے علاج کرایا جائے، بیٹوں سے ویڈیو لنک پر بات بھی کرائی جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کانفرنس سے خطاب، کہا بانی کے ویژن کے تحت صوبے کی جیلوں میں قیدیوں کو تمام سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ نظام انصاف میں بہتری محض فیصلوں سے ممکن نہیں، مؤثر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کا جیل اصلاحات پر قومی کانفرنس سے خطاب، کہا جسٹس سسٹم میں احتساب یقینی بنایا جا رہا ہے، جیلوں میں اصلاحات ہو گئیں تو نظام انصاف خود بخود اپنی اصلاح کر لے گا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، جیلوں اور عدالتی نظام میں اصلاحات سے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا قانون کا احترام سب پر لازم، انصاف کو اہمیت نہ دینے والے ملک ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے قیدیوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری قرار دے دیا۔ کانفرنس میں چاروں وزرائے اعلیٰ کے جیل ریفارمز کے ڈکلیریشن پر دستخط۔
आजाद कश्मीर की सियासत में बड़ी पेशरफ। साबिक वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए। आजाद कश्मीर के वजीर ज़राअत चौधरी अली शान सोनी, साबिक वजीर सेहत निसार अंसर अब्दाली और वजीर आजम आजाद कश्मीर के साबिक मुशीर सरदार इफ्तिखार रशीद भी IPP में शामिल। शमूलियत का ऐलान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात में किया। क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। हल्का LA 16 से इजाज खटाना, LA 39 से ताहिर खोखर और LA 30 से मकबूल गुजर भी IPP में शामिल। आजाद कश्मीर की रुकन असम्बली और साबिक वज़ीर तकदीस गिलानी भी इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गई। तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का बॉयकॉट कर दिया। अवाम के साथ खड़े हैं, रियासत के मौजूदा हालात में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये कोई सियासी हिकमत अमली नहीं, कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार है। PTI का एलामिया। बॉयकॉट का फैसला क़यादत और इत्तेहादियों के मशवरे से किया। बैरिस्टर गौहर का सोशल मीडिया पर पैगाम। PTI का आजाद कश्मीर इलेक्शन से फरार सियासी कमजोरी और खौफ का वाज़ेह सबूत है। उन्हें जमहूरियत पर यकीन होता तो मैदान छोड़ने की बजाय अवाम के पास जाते। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का X पर पैगाम। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने चौथी मरतबा अपोजिशन से कहा है कि आप तशरीफ लाएं, मैं आपके साथ बैठना चाहता हूं। 2 दोस्तों से बात हुई है और मैंने उन्हें कहा कि आपको अपना वफद तश्कील दें। मैं वज़ीर आज़म से बात करके तो आपकी जो है वो मुलाकात अरेंज करवाते हैं। वही बात कि अच्छा ठीक है बताएंगे, कोई उन्होंने बात अभी तक बाकायदा इजहार नहीं किया कि जी हम तैयार हैं। आगे बढ़ने के लिए रास्ते का तयन जरूरी। 2 बार राब्ते के बावजूद PTI ने वजीर आज़म से मुलाकात के हवाले से जवाब नहीं दिया। वो मिलने पर आमादा है या नहीं ये भी नहीं बताया। राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा सियासतदान मिलकर बैठेंगे तो ही मसाइल हल होंगे। सेनेटर ऑन अब्बास बोले 3 मंगल गुजर चुके मगर बानी से एक भी मुलाकात नहीं हुई। राना सनाउल्लाह ये ऑफर दें, हम बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब की जो ऑफर है वो उन्होंने नेशनल असेंबली के प्लेटफॉर्म पे भी की है। ये राना साहब से मैं कहता हूँ आप एक मुलाकात कराएं, एक माहौल क्रिएट होगा, आप ऑफर करें, हम बात करें। आजाद कश्मीर असम्बली के इलेक्शन। बिलावल भुट्टो की अवामी राबता मुहिम तेज करने की हिदायत। PP चेयरमैन से वजीर आजम आजाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर की मुलाकात। इंतखाबी तैयारियों पर ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी कश्मीरी अवाम के मसाइल के हल के लिए उनके साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। बरतानिया में बहादुर पाकिस्तानी का कारनामा। शुएब नियाजी ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मिसाल कायम कर दी। अपनी जान खतरे में डालकर मफरूर मुलजिम को फरार होने से रोक लिया। मकामी अफराद ने शुएब नियाजी को बहादुर पाकिस्तानी और हीरो करार दे दिया। बरतानवी पुलिस ने भी पाकिस्तानी शहरी के इक़दाम को सराहा। यूरोप में हीट वेव तवील। स्पेन में गर्मी से जून में 1029 अमवात की तस्दीक। रवा हफ्ते 6 यूरोपीय ममालिक में शदीद गर्मी की लहर का खदशा। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनान, स्विट्जरलैंड में वार्निंग जारी। क्रोएशिया, अल्बानिया और बोस्निया के जंगलात में आग भड़क उठी। अमेरिका में भी मौसम इंतहाई गर्म। वस्ती और मशरक़ी की रियासत में पारा 38 डिग्री से ऊपर जाने का इम्कान। लाहौर में एक और सानहा, एक और जान चली गई। काहना के ट्यूशन सेंटर के बाद बागबानपुरा में ज़ेरे तामीर स्कूल की दीवार और कच्चा लेंटर गिर गया। मलबे तले दबकर 12 साल का अबू बकर जाम बहाक, 5 अफराद जख्मी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक स्कूल इंतजामिया ने 3री मंजिल पर तामीराती काम के दौरान ही गैर कानूनी समर कैंप लगा रखा था। छत गिरने की खबर मिलते ही वालिदैन की बड़ी तादाद पहुंच गई। अंदर दाखिल होने की कोशिश। यानी शाहिदीन के मुताबिक हादसे के वक्त तमाम बच्चे पिछली बिल्डिंग में मौजूद थे। वाक़े का मुकदमा दर्ज। ठेकेदार अशरफ और स्कूल मालिकिन नाजिया रिजवान मुलजिम नामजद। छुट्टी का टाइम था, वो छोटा एक ये भैया इसका छोटा, ये दोनों बाहर आ गए थे तो वो मैडम ने आवाज़ मारी कि अंदर आ जाओ। अंदर गया, वो कहती है मैडम के बच्चा है छोटा, इसको बाहर छोड़ दो। वो बच्चे को बाहर छोड़ने अंदर बैग लेने गया, ऊपर से छत नीचे गिरी। बागबानपुरा में जाबहक होने वाला अबू बकर छत गिरने से पहले ही स्कूल से निकल गया था। मैडम ने वापस बुला लिया। भाई का बैग लेने ऊपर गया तो छत गिर गई।
बच्चे के चचा का अस्पताल इंतजामिया पर ताउन न करने का इल्जाम, कहा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते, भतीजे की लाश हवाले की जाए। वजीर आला पंजाब का वाक़े पर नोटिस, मरियम नवाज ने रिपोर्ट तलब कर ली। समा के मामला उठाने पर वजीर तालीम का एक्शन, स्कूल को सील कर दिया। महकमे तालीम के 4 अफसरान मुअत्तल, लाहौर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स की इंस्पेक्शन का हुक्म। क़यामत सुगरा के सिर्फ 48 घंटे बाद सरकारी इदारों को क्लीन चिट। सानिया कहना में किसी महकमे या एहलकार की कोई गफलत सामने न आई। हादसा ट्यूशन सेंटर की छत पर ज्यादा मलबा डालने से हुआ। रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को इरसाल। मतन के मुताबिक टीआर गार्डर से बना कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। ज्यादातर बच्चों की अमवात सर पर चोट लगने से हुई। बच्चों की मौजूदगी में तामीराती काम इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार। जहालत की इंतहा, गुजरावाला में मां ने काले जादू और जिन्नात के शुबे में अपनी ही कमसिन बेटी को जला डाला। अस्पताल में 4 साल की बच्ची की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने वालिदा, 2 भाइयों और बहन को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी। SMW-5 सबमरीन केबल में खराबी, मुल्क भर में इंटरनेट इंतहाई सुस्त, सार्फिन को मुश्किलात का सामना। PTA के मुताबिक ट्रैफिक को मुतबादिल लिंक्स पर मुंतकिल किया जा रहा है। सर्विसेज की बहाली के लिए मुतालिका इदारों से मुसलसल राब्ता है। $1.5 मिलियन तावान के लिए अगवा की गई 2 गैर मुल्की लड़कियां लाहौर से बाजियाब। दफा 164 का बयान रिकॉर्ड। हॉलैंड और वेनेजुएला से ताल्लुक रखने वाली खवातीन दोस्तों से मिलने आई थीं। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में सरकारी अस्पताल से HIV के फैलाव से 9 अमवात जाबहक बच्चों के वालिदैन अदालत पहुंच गए। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। वलीका अस्पताल में इस्तेमाल शुदा सिरिंजें मूजी वायरस का बायस बनी, फिर भी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। दरख्वास्त गुजारों का मौकिफ, अदालत ने 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। मरना सबको है, लेकिन केस में कार्रवाई तरीकेकार के मुताबिक ही होगी। सब कुछ अदालत में आएगा और इंसाफ होगा। जस्टिस अदनान करीम की रिमार्क्स। इंसानी अज़ा स्मगलिंग केस में हम पेशरफ्त, ह्यूमन प्लेसेंटा से एंटी एजिंग इंजेक्शन तैयार करने का इंकशाफ। फीकस कीमत 7 लाख रुपए तक है। FIA की तहकीकात। लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी में मुबैना एजेंट्स की निशानदही। वियतनाम भेजी जाने वाली 100 किलोग्राम की खेप रोक ली गई। कस्टम्स एहलकारों के मुलव्वस होने के पहलू की भी छानबीन। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के किरदार की भी जांच पड़ताल। मुआशी मैदान से बुरी खबर, हुकूमत बरामदात का सालाना हदफ पूरा ना कर सकी। हजम $30 अरब तक महदूद। गुज़िश्ता माली साल के दौरान तिजारती खसारा 39.47 अरब डॉलर तक पहुंच गया। सालाना बुनियाद पर 21.57% इजाफा। बरामदात में 6% कमी रिकॉर्ड। दरामदात 8% बढ़ गई। चीन का शिडोंग ग्रुप पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी पर आमादा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से ग्रुप के चेयरमैन की मुलाकात। तवानाई के शोबे में तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के हवाले से बातचीत। अलामिया के मुताबिक ग्रुप ने तेल और गैस की पैदावार बढ़ाने, ड्रिलिंग और फील्ड ऑप्टिमाइजेशन में इन्वेस्टमेंट की पेशकश कर दी। दबंग आवाज, मुनफरिद अंदाज, लोक मौसीकी को नई पहचान देने वाले आलम लोहार को बिछड़े 47 बरस बीत गए। मारूफ गुलकार की आज बरसी, चिमटे की झनकार और गीतों का सहर बरकरार। फुटबॉल वर्ल्ड कप का नॉकआउट मरहला, स्पेन ने ऑस्ट्रिया को मात दे दी। पुर्तगाल और क्रोएशिया का मैच जारी। सुबह 8 बजे स्विट्जरलैंड का अलजायर से मैच शेड्यूल। और इंग्लैंड ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड विमेंस ने सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को 40 रन से शिकस्त दी। फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान इतवार को होगा।